Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Civil Concept. My name is Faizan and I am the research scholar in PDEU Gandhinagar. In today's video we are going to discuss the calculation of height of chimney. So let's begin it. How do we calculate the height of the chimney? According to Central Board for Prevention and Control of Pollution New Delhi, we can calculate the height of the chimney. Actually this board has given the empirical formula for the particulate matter. For particulate matter, the empirical formula the board has given as H is equal to 74 times of the Q raised to the power 0.27, where H is the height of chimney, and this will be in meter, and Q is basically the particulate matter emission in tons per hour. So this is the empirical formula for the particulate matter. H is equal to 74 times of the Q raised to the power 0.27, where Q is the emission rate and this will be in tons per hour, and H is the height of the chimney in meter. And for the gaseous pollutants, and the board has also given the empirical formula for gaseous pollutants. The gaseous pollutants may be sulfur dioxide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, hydrocarbons, etc. So for gaseous pollutants, the empirical formula is H is equal to 14 times of the Q raised to the power 0.3, where H is the height of the chimney in meter and Q is the emission of gases in kg per hour. So here the unit is different for the gaseous case. If the gaseous emission is there, then the emission rate for the gases will be in kg per hour for this empirical formula. So based on this empirical formula for the gaseous case and for the particulate matter cases, so we will calculate the various height of the chimney based on these emissions, and whichever the maximum height we obtain, that will be the height of the chimney. So based on the empirical formula for the calculation of height of the chimney, let's solve a numerical. So here is the numerical. What it says: a factory uses 200,000 liters of furnace oil per month. If 1 million liters of oil used per year, the particulate matter emitted is 3.5 tons per year. Sulfur dioxide emitted is 59.8 tons per year. NOx, that is nitrogen oxides, emitted is 6.5 tons per year. Hydrocarbons emitted are 0.45 tons per year, and carbon monoxide emitted is 0.5 tons per year. Calculate the height of the chimney required to be provided for safe dispersion of the pollutants. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन डेटा in question, consumption of oil is given, that is 200,000 लीटर पर मंथ. तो अगर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200,000 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा ये लीटर तो ये लीटर पर ईयर हो जाएगा. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2400,000 लीटर पर ईयर. अगर इसमें हम 10 लाख से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 2.4 मिलियन लीटर पर ईयर ऑफ द ऑयल कंजम्पशन. और क्या दिया है क्वेश्चन में? पार्टिकुलेट मैटर emission per million liter consumption of oil. ये आपको गिवन है 3.5 टन्स पर ईयर.
लेकिन ये 1 मिलियन लीटर कंजम्पशन ऑफ ऑयल होगा, तो पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन आपका 3.5 टन्स पर ईयर दिया हुआ है। तो अगर जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कितना कंजम्पशन ऑफ ऑयल निकल कर आया था, 2.4 मिलियन लीटर पर ईयर, तो अगर 2.4 मिलियन लीटर ऑफ ऑयल का कंजम्पशन हो तो पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन कितना होगा? सो पार्टिकुलेट मैटर एमिशन फॉर 2.4 मिलियन लीटर कंजम्पशन ऑफ ऑयल, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट 3.5 इंटू 2.4, दिस इज 8.4, दिस इज 8.4 टन्स पर ईयर। तो पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन अगर 2.4 मिलियन लीटर कंजम्पशन ऑफ ऑयल होता है, तो मेरा एमिशन रेट निकल कर आया पार्टिकुलेट मैटर के लिए 8.4 टन्स पर ईयर। अब हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग वर्किंग डेज इन ए ईयर, तो हम लिख लेते हैं 300 डेज, यानी एक ईयर में 300 डेज वर्क हुआ है। और अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग वर्किंग आवर्स, इसे ले लेते हैं हम 24 आवर्स का। तो उस कंडीशन में मेरा पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन कितना होगा, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल एमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर कितना हो जाएगा, तो वो आपको निकल कर आया था 8.4 टन्स पर ईयर, 8.4 टन्स पर ईयर। तो अगर हम इसको पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8.4 टन्स है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 300 डेज से, तो ये क्या हो गया, पर डे में कन्वर्ट हो गया। और एक डे में हमने अज्यूम किया है 24 आवर्स वर्क हो रहा है, तो 24 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना निकल जाएगा आपका, टन्स पर आवर के हिसाब से निकल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8.4 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 24, तो वैल्यू निकल कर आ रही है 0.0017 टन्स पर आवर। तो पार्टिकुलेट मैटर का टोटल एमिशन विद द कंजम्पशन ऑफ 2.4 मिलियन लीटर ऑफ ऑयल, तो ये निकल कर आया आपको 0.0017 टन्स पर आवर। नाउ हाइट ऑफ चिमनी based on the emission of पार्टिकुलेट मैटर, तो ये हम एम्पिरिकल फार्मूला से देख चुके हैं जो सीपीसीबी ने हमें दिया था, दैट इज H इज इक्वल टू 74 टाइम्स ऑफ द Q रेज टू दी पावर 0.27। ये एम्पिरिकल फार्मूला हमको सीपीसीबी से मिला है, जहाँ पर Q आपका एमिशन रेट है लेकिन ये टन्स पर आवर में है। तो सिंपल वैल्यू Q की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हम पार्टिकुलेट मैटर की ही बात कर रहे हैं। तो H इज इक्वल टू 74 टाइम्स ऑफ द Q, दैट इज 0.0017 रेज टू दी पावर 0.27। तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगी हाइट ऑफ द चिमनी। तो ये हो जाएगा आपका 0.0017 रेज टू दी पावर 0.27 इंटू 74, तो वैल्यू निकल कर आई 13.23 मीटर। सो ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर मेरा चिमनी का हाइट निकल कर आया 13.23 मीटर। अब हम गैसेस के केस में देख लेते हैं। नाउ हाइट ऑफ चिमनी बेस्ड ऑन gaseous emission, तो ये भी हमको सीपीसीबी से एम्पिरिकल फार्मूला पता है, H इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ द Q रेज टू द पावर 0.3 फ्रॉम सीपीसीबी। यहाँ पर जो Q है
क्यू का जो यानी दिस इज द एमिशन रेट फॉर द गैसेस एंड इट इज़ इन kg पर आवर। इन गिवन क्वेश्चन हमको डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का एमिशन रेट गिवन है। दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड के लिए आपका जो एमिशन रेट है 59.8 टन्स पर ईयर है। ओके, एंड फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए, नॉक्स के लिए है आपका 6.5 टन्स पर ईयर। हाइड्रोकार्बन्स के लिए ये एमिशन रेट आपको गिवन है 0.45 टन्स पर ईयर, और कार्बन मोनोक्साइड के लिए है 0.58 टन्स पर ईयर। अब यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला से आप देख रहे हैं H दैट इज हाइट ऑफ द चिमनी इज द फंक्शन ऑफ एमिशन रेट। क्लियर है? तो जिसका जितना ज़्यादा एमिशन होगा उसके लिए उतना ज़्यादा वैल्यू हमको निकल कर आएगा। और हम जानते हैं कि जो हाइट ऑफ द चिमनी हमको कैलकुलेट करना है, जो मैक्सिमम होगा उसके लिए करेंगे। तो यहाँ से जो मैक्सिमम हमको एमिशन रेट होगा जिस गैसेस का, उसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो बाकी सारे गैसेस के लिए हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन रेट सबसे ज़्यादा है। तो हम सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड के केस में ही हाइट ऑफ द चिमनी को हाइट ऑफ द चिमनी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका एमिशन रेट सबसे ज़्यादा है। और एज वी नो डेट H दैट इज हाइट ऑफ द चिमनी इज द फंक्शन ऑफ द एमिशन रेट। तो जिसका एमिशन रेट सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए हाइट ऑफ द चिमनी सबसे ज़्यादा निकल कर आएगा, और जिसका ज़्यादा हाइट ऑफ द चिमनी होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे हाइट ऑफ द चिमनी। तो रेस्ट ऑफ द गैसेस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, और यहाँ के केस में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन रेट ज़्यादा है तो हम उसे कंसिडर करते हुए अपना हाइट ऑफ द चिमनी को कैलकुलेट करेंगे। सो हियर Q is the sulfur dioxide emission in kg पर आवर। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन दिया हुआ है आपका, वो कितना है आपका 59.8 टन्स पर ईयर है। तो सबसे पहले इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 59.8 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी पर ईयर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो 59.8 टन्स पर ईयर है, ये 1 मिलियन लीटर ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑयल के लिए दिया है। लेकिन आपका टोटल ऑयल का कंजम्पशन कितना हो रहा है 2.4 मिलियन लीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.4 से, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं, 59.8 इंटू 1000 इंटू 2.4। तो ये एस्टिमेट होकर आया 143520 kg पर ईयर। ओके, 143520 kg पर ईयर। तो अब इसको हमको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में अगर हम डिवाइड करेंगे डेज से, तो लेकिन हम नंबर ऑफ डेज को कितना अज्यूम किए हैं 300, तो ये हो जाएगा पर डे में। और फिर डे में डिवाइड कर देंगे 24 आवर्स से, क्योंकि हमने वर्किंग आवर्स को अज्यूम किया 24 आवर्स। तो ये केजी पर ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका वैल्यू आया है 143520, इसमें हम 300 से डिवाइड कर देते हैं और 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये केजी पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 300 and divided by 24, the value will be 19.93 kg per hour. सो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन निकल कर आया 19.93 kg पर आवर। जब हम 2.4 मिलियन लीटर ऑफ ऑयल को कंज्यूम करेंगे तब इतना एमिशन निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम CPCB से जानते हैं, फार्मूला से, एम्पेरिकल फार्मूला से, डेट इज H इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ द Q रेज टू दी पावर 0.3 फॉर द गैसेस एमिशन के लिए। और हमने Q का वैल्यू जो सल्फर के लिए निकाला था, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए निकाला था 19.93 kg पर आवर। सिंपल ये वैल्यू को पुट करना है, H इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ द Q, डेट इज 19.93 रेज टू दी पावर 0.3। सॉल्व कर लेते हैं। 19.93 रेज टू दी पावर 0.3 इंटू 14। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू निकल कर आ रही है H इज इक्वल टू 34
13.35 मीटर। तो आपने पार्टिकुलेट मैटर के लिए भी निकाला और गैसियस पॉल्यूटेंट्स के लिए भी हाइट ऑफ द चिमनी को कैलकुलेट किया। तो ये है आपका गैसियस पॉल्यूटेंट के लिए यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। और एक मैंने हाइट ऑफ द चिमनी कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू निकल कर आई थी और जिसकी वैल्यू निकल कर आई थी 13.26 मीटर। ये पार्टिकुलेट मैटर के केस में था। तो अब इसमें से हाइट ऑफ द चिमनी किसे अज्यूम करेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा। सो हाइट ऑफ द चिमनी विल बी मैक्सिमम ऑफ दीज टू, मैक्सिमम ऑफ 13.26 मीटर एंड 34.35 मीटर। तो मैक्सिमम 34.35 मीटर है, तो हाइट ऑफ द चिमनी आपका जो निकल कर आएगा 34.35 मीटर। So this will be the height of the chimney we will have to assume for the given problem. So that's it for today's class. Thanks for watching.